We pray for Ukraine or Urain. With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 4 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. Nasze programy oferują wiele języków. Prosimy zobaczyć suprememastertv.com/schedule. Sri Yukteswar was silent for a few minutes, a half-suppressed smile on his lips. "No, you forgot," he said finally. "Divine contemplation must not be made an excuse for material carelessness." Please continue watching for more inspiring narratives from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, vegetarian, the venerated enlightened master. Vegan, quality of heaven. What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? What do we want? When do we want it? Their bodies, their milk, their skin, their babies, their bodies, their milk, their skin, Today's program will be presented in Hindi with subtitles in Arabic or Lasis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं राम हूँ। समर्पित भारतीय लोग सभी पशुजनों का सम्मान करने वाली आपकी दयालु वीगन जीवन शैली के लिए आपके आभारी है, जो हमें आशीर्वाद और खुशी प्रदान करते हैं। There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Brazil is one of them. Brazil. Constitution Article 225, SEC 7. Federal Decree on Anti-Cruelty. The Brazilian Constitution states the government must protect the fauna and flora with prohibition, in the manner prescribed by law, of all practices which represent a risk to their ecological function, cause the extinction of species, or subject animals to cruelty. In July 1934, President Getúlio Vargas issued Federal Decree 24,645, a set of measures seeking to safeguard animal people from cruelty and ill treatment, especially working animal persons. Among other requirements, animal individuals may not be abandoned and must be given veterinary assistance if needed. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. ज्ञान के शब्दों पर
फूल गोभी का ज्ञान परमहंस योगानंद द्वारा लिखित योगी कथामृत के चुनिंदा अंश भाग 2 के भाग 1 में आपका स्वागत है। 1944 में इसके पहले प्रकाशन के बाद से योगी कथामृत पुस्तक ने दुनिया भर के अनगिनत सत्य की खोज करने वालों को प्रेरित किया है। विशेष रूप से मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई इस पुस्तक ने कई पश्चिमी लोगों को ध्यान और क्रिया योग की शिक्षाओं से परिचित करवाया है। आत्मकथा में प्रसिद्ध भारतीय योगी और आत्मज्ञानी गुरु परमहंस योगानंद शाकाहारी के असाधारण जीवन की कहानी शामिल है, जिनका जन्म 1893 में हुआ था। इसके पन्नों में योगानंद की युवावस्था के दौरान कई संतों और योगियों के साथ उनकी मुलाकातों के स्पष्ट और खूबसूरती से व्यक्त विवरण है, जिसमें उनके गुरु श्री युक्तेश्वर शाकाहारी से मिलन और उनके मार्गदर्शन में 10 वर्षों तक प्राप्त प्रशिक्षण और 1920 में उनके संयुक्त राज्य में आने के विवरण शामिल है। इस आत्मकथा के अन्य मुख्य आकर्षण योगानंद के गुरु पूज्य लाहिड़ी महाशय शाकाहारी की उनकी यादें, साथ ही आत्मज्ञानी गुरु और अमर संत महाअवतार बाबा जी शाकाहारी के साथ उनकी मुलाकात भी है। 1920 में परमहंस योगानंद ने आध्यात्मिक संगठन सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की और उससे पहले 1917 में उन्होंने योगोदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया YSS की स्थापना भी की थी। दोनों अभी भी प्रिय गुरु की शिक्षाओं को फैलाने के लिए साधन के रूप में काम करते हैं। आज हमें परमहंस योगानंद के अद्भुत संस्मरणों से चयन को प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें उन्होंने अपने गुरु के साथ हुए एक व्यक्तिगत अनुभव का विवरण दिया है। अध्याय 15 फूल गोभी की चोरी। गुरुदेव, आपके लिए भेंट। इन 6 बड़ी बड़ी फूल गोभियों को मैंने अपने हाथों से लगाया था और इनकी देखभाल उसी ममता के साथ की थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। इतना कहकर मैंने बड़ी भाव भंगिमा के साथ गोभियों की टोकरी प्रस्तुत की। शाबाश, श्री युक्तेश्वर जी ने सस्नेह मुस्कुराकर अपनी स्वीकृति प्रकट की। अभी इन्हें अपने कमरे में ही रखो, कल एक विशेष भोज में ये काम आ जाएगी। कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां अपने गुरु के साथ उनके समुद्र तट पर स्थित पूरी आश्रम में बिताने के लिए मैं अभी पूरी पहुंचा था। गुरु और उनके शिष्यों द्वारा निर्मित इस 2 मंजिले छोटे से सुंदर आश्रम के सामने ही बंगाल की खाड़ी है। Turned vegan? Oh, you've no choice but to be repatriated to heaven home. You haven't been warned? Sorry, man. सारी समुद्री हवा के झांकों से और आश्रम के शांत वातावरण से तरोताजा होकर दूसरे दिन प्रातःकाली में जाग गया। गुरुदेव अपने करम मधुर स्वर में मुझे पुकार रहे थे। मैंने अपनी प्रिय फूल गोभियों पर एक दुलार भरी दृष्टि डाली और उन्हें हिफाजत से अपनी खटिया के नीचे रख दिया। आओ समुद्र तट पर चले। गुरुदेव आगे आगे चलने लगे। कई बालक शिष्य और मैं उनके पीछे फैले हुए झुंड में चलने लगे। गुरुदेव ने सौम्य आलोचना भरी दृष्टि हम पर दौड़ाई। जब हमारे पाश्चात्य बंधुजन चलते हैं तब सामान्यतः उन्हें तालबद्ध ढंग से चलना अभिमानास्पद लगता है। अब
कृपया 2 पंक्तियों में एक दूसरे के साथ पग मिलाकर चलो। जब इस आज्ञा का पालन करते हुए हम चलने लगे तो श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि हम पर जमी रही। उन्होंने गाना शुरू कर दिया, लड़के चलते जाते हैं, पंक्ति में भाते हैं। चुस्ती और फुतरी से चलते अपने बालक शिष्यों के साथ जिस आसानी से पग मिलाकर श्री युक्तेश्वर जी चल रहे थे, उसे देखकर मैं विस्मित हुए बिना नहीं रह सका। ठहरो, मेरे गुरु ने मेरी आंखों में आंखें गड़ा दी। तुमने याद से आश्रम के पिछवाड़े के दरवाजे में ताला लगाया था? जहाँ तक मुझे लगता है लगाया था गुरुजी। होठों पर दबी मुस्कुराहट लिए श्री युक्तेश्वर जी चंद मिनटों के लिए चुपचाप खड़े रहे। नहीं, तुम भूल गए, आखिर वे बोले। ईश चिंतन को सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम की सुरक्षा के अपने कर्तव्य की अवहेलना की है। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। जब उन्होंने आगे कहा कि तुम्हारी 6 फूल गोबियाँ शीघ्र ही 5 बन जाएगी, तो मुझे लगा वे कोई गू मजाक कर रहे हैं। गुरुदेव का आदेश पाकर हम लोग वापस मुड़े और उसी प्रकार पंक्तिबद्ध चलते हुए आश्रम की ओर चल दिए। यहाँ थोड़ी देर ठहरो मुकुंद, अपनी बाई तरफ अहाते के उस पार की सड़क को देखते रहो। अभी वहाँ एक आदमी पहुँचेगा, वही तुम्हारी सजा का माध्यम बनेगा। इन अगमय शब्दों पर मन में उत्पन्न हुई परेशानी को मैंने मन में ही दबा लिया। सड़क पर शीघ्र ही एक किसान दिखाई पड़ा। अपने हाथ इधर उधर उछालकर निर्थक अंग विक्षेप करता हुआ वह हास्यास्पद ढंग से नाच रहा था। कौतूहल से लगभग जड़ सा बना मैं उस हास्यास्पद दृश्य को एकटक देखता रहा। जैसे ही वह आदमी सड़क पर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहाँ से वह हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, अब वह लौटकर वापस आएगा। उस किसान ने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और आश्रम के पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। रेत के एक मैदान को पार कर वह पीछे के दरवाजे से आश्रम में घुस गया। जैसे कि मेरे गुरु ने कहा था, मैंने दरवाजे में ताला नहीं लगाया था। शीघ्र ही वह आदमी मुझे बहुमूल्य लगने वाली मेरी एक घोबी हाथ में लिए बाहर आ गया। अब वह संपत्ति की महिमा से पूर्ण होकर संभारन ढंग से चलने लगा। Turned vegan and looking better now? No one told you this side effect? Well, you know now, man. इस हास्य नाटिका का घटनाक्रम, जिसमें मेरी भूमिका एक लूटे जा रहे किंकर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति की सी प्रतीत हो रही थी, इतना अद्भुत कर देने वाला भी नहीं था कि मैं ताव में आकर चोर का पीछा करना भूल जाऊं। सड़क की ओर आधी दूर ही मैं पहुंचा था कि गुरुदेव ने मुझे वापस बुला लिया। हंसी के मारे सिर से पांव तक उनका सारा शरीर हिल रहा था। बार बार उमड़ पड़ती हंसी के ठहाकों के बीच उन्होंने बताया, उस बेचारे पगले को एक फूल गोभी चाहिए थी। मैंने सोचा उसे तुम्हारी असुरक्षित छोड़ दी गई गोभियों में से एक मिल जाए तो अच्छा ही होगा। मैं दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि उस चोर ने, जो स्पष्टतः केवल सब्जी चोर ही प्रतीत हो रहा था, कंबल पर खुलेआम पड़ी मेरी सोने की अंगूठियों, घड़ी और पैसे को छुआ तक नहीं था। इसके बदले वह रेंग कर खटिया के नीचे घुस गया था, जहां बाहर से बिल्कुल भी दिखाई न देने वाली गोभियों की वह टोकरी थी जिसमें उसे अपनी एकमात्र मनोवांछित वस्तु मिल गई। उस दिन शाम को मैंने इस घटना को समझाने का अनुरोध श्री युक्तेश्वर जी से किया। मुझे लग रहा था कि इस घटना में कुछ सामान्य स्तर पर समझ में न आने वाली बातें थी। मेरे गुरु ने धीरे धीरे सिर हिलाया। किसी दिन यह बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। विज्ञान शीघ्र ही इन गुप्त नियमों में से अनेकों को खोज निकालेगा।
अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग gutenberg.org। Every time we sit down to eat, we have an extraordinary opportunity to make a positive impact on our own health, on the lives of animals, on the well-being of other people, and on the prosperity of the planet, all of which most people care about. Alamega's Vegan. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses, no more hurting, no more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan, make peace, so be it. स्नेहशील दर्शकों, आज के ज्ञान के शब्दों को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया कल फिर से फूल गोभी का ज्ञान, परमहंस योगानंद शाकाहारी के योगी कथामृत के चुनिंदा अंश भाग 2 के 2 भाग के लिए फिर से जुड़े। आगे आ रहा है मिथक और संस्कृति के रंग, बाली में पारंपरिक कामासान पेंटिंग 2 भागों का दूसरा भाग। उल्लेखनीय समाचार के ठीक बाद सभी सांसारिक प्राणियों के प्रति आपकी दयालुता आपके लिए अनगिनत आशीर्वाद लेकर आए। Warm-hearted viewers, thank you for watching today's Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for Cauliflower Wisdom, selections from Autobiography of a Yogi by Paramhansa Yogananda, Vegetarian, Part 2 of 2. Coming up next is Colors of Myth and Culture, Traditional Kamasan Painting in Bali, Part 2 of 2, right after noteworthy news. May your kindness to all earthly beings bring you countless blessings. Russia, leave Ukraine or you reign now. Peace be with you too. Be vegan, make peace, do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW.